Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video, we will learn about the topic asexual methods of reproduction, which is a very important topic from your class 10th science. So in our previous video, we had discussed about the difference between the asexual as well as sexual modes of reproduction. So in case of asexual reproduction, only one parent is involved. Only one parent is involved. Also, in this case, the offspring developed is identical to the parent. So, the offsprings are identical to their parents. And no gametes or no sex cells are involved in this case, and there is no fusion of gametes. So there are many types of asexual modes of reproduction. We will discuss them one by one. So the first type of asexual reproduction is fission, binary fission and multiple fission. So what we mean by the term fission? So fusion means to combine something and fission means to break something. And when we say binary fission means two and fission means breakdown, means from one parent two organisms or two offsprings are coming, and amoeba is the best example of binary fission. Then when we say multiple fission means from one parent when multiple daughter cells will arise, then it is known as multiple fission. Plasmodium, which is the malaria parasite, is the best example of multiple fission. Here you can see that a cyst develops around the cell, and with the help of multiple fission, many nuclei or many daughter cells are produced inside the cyst, and when the cyst breaks, all the daughter cells are released, and from one parent we can see that multiple daughter cells have been released, and so this is known as multiple fission. Then the next mode of reproduction is fragmentation. Fragmentation means to make fragments. This generally occurs in Spirogyra. Spirogyra is the green algae which is found in the lakes, है ना, साइड में जो लेक्स के या जो काही होती है ना, जहाँ पे पानी जमा रहता है, वो जो ग्रीन ग्रीन एल्गी होते हैं वो होते हैं हमारे स्पाइरोगाइरा. फ्रैगमेंटेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. द वन थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फ्रैगमेंटेशन इज दैट व्हेन the organism matures, then it breaks itself into fragments. Means upon maturity, the organism will break itself into fragments, and the fragments will now develop into new individual. Means upon maturity, the organism breaks into, ठीक है, खुद को ही ब्रेक कर लेता है, ब्रेक्स इटसेल्फ इनटू फ्रैगमेंट्स, and each fragment develops into new daughter cell, and each fragment okay. So this is the best example of fragmentation. What is Spirogyra? You have to remember all the examples, because many a times in the examination they ask about fragmentation and then they will ask about the example. So you have to note down which organism develops from which mode of reproduction. Then the next asexual method of reproduction is regeneration. This is somewhat similar to fragmentation, but there is one major difference, and the major difference is that when accidentally an organism is cut and all the cut parts develop into new individual, then
इट इज नोन एज रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब क्या हो गया, दोबारा से जनरेट हो जाना। दोबारा से कब जनरेट होगा, जब एक्सीडेंटली अगर कट गया कोई ऑर्गेनिज्म तो हर एक पार्ट नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा, दैट इज नोन एज रीजनरेशन। एंड प्लेनेरिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। ऑल्सो देयर इज वन मोर एग्जांपल विच इज ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश के भी अगर आर्म्स कट जाते हैं तो वो अपने आर्म्स दोबारा लगा लेती है। अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जो छिपकली की पूंछ गिर जाती है और फिर छिपकली अपना नया पूंछ बना लेती है, तो क्या वो भी रीजनरेशन है? कई बार बच्चे कहते हैं हाँ, लेकिन अगर आप ये देखें तो रीजनरेशन में क्या कह रहा है कि हर एक पार्ट से नया इंडिविजुअल बन रहा है। तो छिपकली तो अपनी पूंछ बना लेती है, लेकिन क्या वो पूंछ से नया छिपकली बनता है? नहीं बनता। तो वो जो एग्जाम्पल है छिपकली वाला, वो रीजनरेशन का एग्जाम्पल नहीं है। कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में लिख आते हैं लिजार्ड, बट दैट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया एज वेल एज स्टार फिश। और इस केस में क्या होता है कि व्हेन एक्सीडेंटली, ठीक है, व्हेन एक्सीडेंटली the organism is cut into pieces, then new organism develops from all the pieces। ठीक है, तो यहां पर हो गया हमारा प्लेनेरिया जो बेस्ट एग्जांपल। जैसे यहां पे अगर ये कट गया 3 पार्ट्स में, तो इस वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये पार्ट जो है ये पहले का रहेगा और ये नया डेवलप हो गया। इस प्लेनेरिया में ये पोर्शन पहले का है और ये नया डेवलप हो गया। इसमें ये पहले का है और ये वाला पोर्शन नया डेवलप हो गया। तो हर एक जो फ्रैगमेंट है सॉरी, हर एक जो फ्रैगमेंट है ये डेवलप हो जाएगा न्यू ऑर्गेनिज्म में। सो after regeneration, the next mode of reproduction in case of asexual methods, it is budding। budding का मतलब क्या हो गया, बड निकालना है ना। जैसे हमारे फ्लावर्स में होता है बड बनता है, फिर नया फ्लावर बन के आता है, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म में एक पहले बड फॉर्म होता है और फिर वो बड जो होता है वो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेता है। यहाँ पर जो ईस्ट है, ईस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेलुलर animal, means unicellular organism। Yeast is the example of unicellular organism which performs budding, whereas Hydra is the example of multicellular organism which performs budding। तो कई बार पूछ देता है आपके एग्जाम में कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन with the help of budding and draw the diagram। तो ये सारे डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको डायग्राम्स के साथ भी पूछ देता है, या कई बार क्या करेगा कि आपको डायग्राम दे देगा और बोलेगा कि आइडेंटिफाई द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शोन हियर, विच ऑर्गेनिज्म इज दिस, और एक्सप्लेन करना है उसको। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके डायग्राम्स भी आपको याद रखने हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चुन रहे हैं वो भी आपको याद होना चाहिए और उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ईस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म्स बडिंग, वेयरएज हाइड्रा इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म्स बडिंग। तो क्या होता है कि सबसे पहले पेरेंट में एक छोटा सा बड बनता है, फिर वो बड धीरे धीरे बड़ा होता है और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। अब ये क्या हो गया, इट हैज डिटैच्ड फ्रॉम दी पेरेंट बॉडी और डिटैच होके अब ये इंडिपेंडेंटली नया ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो कर लेगा। ठीक है, देन द नेक्स्ट मेथड इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कई सारे फंगस यूज करते हैं और बेस्ट एग्जांपल है स्पोर फॉर्मेशन का राइजोपस, या जिसको हम कहते हैं कॉमन ब्रेड मोल्ड। जो ब्रेड में हमारे ग्रीन कलर की फंगस लग जाती है, ब्लैक ग्रीन कलर की, वो होती है राइजोपस और वो डेवलप करती है विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या होता है कि स्पोरेंजियम बनाते हैं और स्पोरेंजियम में स्पोर्स डेवलप रहते हैं और ये जो स्पोर्स हैं ये ब्रेक होके, ये जो स्पोर्स होते हैं ये इतने लाइट वेट होते हैं कि ये हवा में रहते हैं प्रेजेंट। जैसे अगर आप ये सोचो कि आपने ब्रेड रखा और उस ब्रेड में फंगस लग गया,
तो उस ब्रेड में फंगस कैसे लगा, वो फंगस कहाँ से आया, उस ब्रेड में था क्या, नहीं, वो उस ब्रेड में नहीं था। वो क्या था, जो फंगस के स्पोर्स थे वो आपके एयर में है फैले हुए, और इन स्पोर्स को जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी दे विल सेटल डाउन एट दैट पोजीशन एंड देन डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा स्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर स्पोर्स रहते हैं, और स्पोरेंजियम बस्ट होके स्पोर्स रिलीज कर देता है एनवायरनमेंट में, और इन स्पोर्स को व्हेन दे गेट फेवरेबल कंडीशन, स्पोर्स व्हेन गेट favorable condition, then they settle down on that and grow into new individual. So this was about spore formation. Then the next mode of reproduction is in case of plants. Plants में भी asexual reproduction होता है, as well as they perform sexual reproduction too. But here in today's video we are discussing about only asexual modes of reproduction. So in case of plants it is known as vegetative propagation. Vegetative propagation means the formation of new plants from any vegetative part of the plant other than the seed. मतलब कि सीड छोड़ के अगर और किसी भी पार्ट से नया प्लांट डेवलप हो रहा है देन उस प्रोसेस को हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमारा ब्रायोफिलम, ये क्या है, ब्रायोफिलम की लीफ है, और इसमें खुद से ही लीफ के टिप्स पे नए नए प्लांट्स अपने आप डेवलप हो रहे हैं, और ये जो प्लांटलेट्स हैं इनको हम बोलेंगे प्लांटलेट्स, और ये प्लांटलेट्स वापस से नए प्लांट में ग्रो कर जाएंगे। आपने देखा होगा आपके घरों में आलू अगर रह जाता है बाहर बहुत दिन के लिए तो वहाँ पर भी कुछ वाइट वाइट बर्ड्स फॉर्म हो जाते हैं, और उनको अगर हम क्या करें, उस पोर्शन को लेके अगर हम रख दें, मिट्टी में डाल दें तो वो नया प्लांट डेवलप कर जाएंगे। बाकी हम लोग सभी जानते हैं कि रोज कटिंग होती है ना, कि गुलाब की कलम काट के लगा देते हैं। तो जनरेशन ऑफ न्यू प्लांट्स from vegetative parts of the plant is called vegetative propagation. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऐसे प्लांट्स के लिए जिनमें सीड्स कम बनते हैं या सीड्स नहीं बनते, जैसे केला है ना, केले का जो प्लांट होता है वहाँ पर सीड्स नहीं बनते या कम बनते हैं, तो उस केस में केले का जो प्रोपगेशन होता है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। और एग्जांपल है ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे ग्रेप हो गया हमारा, वाटरमेलन हो गया, जहाँ पर सीड्स कम बने, तो उस केस में इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन? एक तो क्या होगा कि कम टाइम लगेगा, है ना, कम टाइम लगेगा। अगर हम सीड से कोई प्लांट लगाएं और स्टेम कटिंग से कोई प्लांट लगाएं तो इट विल टेक लेस टाइम। सो फर्स्ट एडवांटेज इज इट विल टेक लेस टाइम। टाइम कम लगेगा तो क्या होगा, चीप होगा, है ना, टाइम इज मनी, टाइम कम लगेगा तो इसका मतलब कि चीप हुआ। और क्या होगा कि अगर हमारा कोई पेरेंट प्लांट है जिसमें अच्छी ईल्ड आ रही है और हम वेजिटेटिवली उसको प्रोपगेट कर रहे हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या हुआ, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मींस द ऑफस्प्रिंग विल बी आइडेंटिकल टू दी पेरेंट। तो उस केस में हमारा जो पेरेंट प्लांट ईल्ड अगर अच्छा देता था तो ऑफस्प्रिंग भी क्या करेगा, ईल्ड अच्छा देगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कि अगर पेरेंट में कोई डिजीज है तो ऑफस्प्रिंग में भी आएगा। तो ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या, कि सीडलेस प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज होता है, यूज फॉर दोज प्लांट्स which do not have seeds। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस भी है इसके, इंपॉर्टेंस कह लो या एडवांटेजेस कह लो, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। तो कई सारे इसमें आ जाएंगे हमारे, कटिंग, ग्राफ्टिंग, है ना, लेयरिंग, ये सब एग्जांपल्स है हमारे वेजिटेटिव
प्रोपगेशन के, और ये हमारा एडवांटेज हो गया कि एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। सो आज के क्लास में हमने देखा वेरियस मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which we had learnt about binary fission, multiple fission, fragmentation, regeneration, spore formation, budding and vegetative propagation.